How are you? Today I have come with some more lectures on acids and bases, the ongoing lectures. So let's discuss. In which we are discussing the indicators. So there are basically the four types of indicator. Okay, there are basically the four types of indicator. One is the natural indicator, which right now we were discussing. Like this natural indicators means this all we were discussing, like the this no sorry this turmeric powder, and this all means this litmus paper and China rose. So these are all the types of natural indicators. Okay, and the second type of the indicators are the olfactory indicators, and then next synthetic, and then next one is the universal solution, universal indicators. Okay, so let's discuss one by one again, because already I have this told you this what are the natural indicators. Okay, so let's discuss once again. Natural indicators are obtained from the natural sources, means the natural sources like this turmeric powder, like this litmus paper, these are obtained from the natural sources, so they are known as the natural indicators. So they have the property like if you dip the blue litmus paper in this acidic solution, it will change into the red color, and if you dip the red color litmus paper in the basic solution, it will change into the blue color. So this is how we can find out whether it is acid or base. Okay, तो एसिड और बेस को आपको पता करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लू लिटमस पेपर को आपने अगर एसिड में डाला तो इट विल चेंज इनटू रेड कलर, और आपने रेड कलर के लिटमस पेपर को अगर आपने बेस में डाला, सो इट विल चेंज इनटू इट विल टर्न इनटू द ब्लू कलर. Okay, so this is how you can find out whether a solution is acidic or alkaline, means that is the basic. तो basic है या वो acidic solution है, you can find it using this litmus paper. So नेचुरल इंडिकेटर का यूज हमारा यहाँ पर होता है. ओके, द नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स आर द ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. ओल्फैक्टरी इंडिकेटर मीन्स सब्सटेंस विच चेंज दियर स्मेल व्हेन मिक्सड. ओके, जब मीन्स इन सब्सटेंस को जब हम एसिड और बेसिस के साथ मिक्स करते हैं तो इनकी स्मेल में चेंज आ जाता है. लाइक इन द केस ऑफ अनियन, या आपने अनियन लिया, सो व्हेन यू जस्ट ऐड द अनियन विद द बेसिक सॉल्यूशन, सो इट लूजेज इट्स स्मेल. तो अनियन की स्मेल मीन्स लूज मीन्स इट लूजेज इट्स स्मेल, इसकी स्मेल वो हो जाएगी, मीन्स वैनिश हो जाएगी. ओके, बट इफ़ यू विल ऐड इट टू द बेसिक सॉल्यूशन, सॉरी एसिडिक सॉल्यूशन, अगर आपने अनियन को एसिडिक सॉल्यूशन में आपने ऐड किया तो इसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा. ओके, नाउ द वेनिला, द नेक्स्ट इज द वेनिला, VENILLA. So vanilla solution is also used in an olfactory indicators. तो olfactory indicators में अगर vanilla को आपने basic solution के साथ आपने ऐड करते हैं तो it again vanishes its smell. तो इसकी स्मेल आपकी वैनिश हो जाएगी, दूर हो जाएगी, इसकी स्मेल नहीं होगी इसमें कोई फिर. ओके, बट अगर आपने उसको एसिडिक सॉल्यूशन में अगर आप इसको ऐड करते हैं तो इसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं आता, इट डज नॉट चेंज इट्स स्मेल. सो दीज आर द टू olfactory indicators. ओके, तो इन ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को भी आप एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए भी आप पता कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स आर द सिंथेटिक इंडिकेटर्स. सिंथेटिक इंडिकेटर्स मीन्स विच आर सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी, जिनको केवल लेबोरेटरी में ही बनाया जा सकता है. ओके, सो देर आर बेसिकली मेनी टाइप्स ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर यूज देयर. ओके, so let me give you some example like the phenolphthalein. This is the phenolphthalein and this is the methyl orange. So two types of synthetic indicators, so just I'm going to tell right now. Okay, so what are the work of these two synthetic indicators? Synthetic indicators like in the case of this phenolphthalein. Phenolphthalein is a colorless liquid. Okay, phenolphthalein जो आता है आपका colorless liquid होता है, but when you add it to the base, अगर आपने इसको बेस के साथ ऐड किया, सो इट विल टर्न्स इनटू पिंक कलर. तो बेस को पिंक कलर में बदल देगा. ओके, अगर पिंक कलर में बदल गया तो इसका मतलब आप समझ लें कि ये वो आपका बेस है. ओके, बट इफ़ यू ऐड इट टू द एसिड, अगर आपने एसिड में डाला तो एसिड विल नॉट चेंज इट्स कलर, तो इसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा. तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट अ सॉल्यूशन वेदर इट इज एसिडिक और द एल्कलीन मीन्स बेसिक. ओके, सेम इज द केस फॉर द मिथाइल ऑरेंज ऑल्सो. मिथाइल ऑरेंज के लिए भी आपका सेम केस है. मिथाइल ऑरेंज को अगर आपने बेसिक में ऐड करते हैं, okay, if you are adding this methyl orange to the basic solution, तो it will turn into yellow color, तो येलो कलर में चेंज हो जाएगा. ओके, एंड इफ़ यू ऐड मिथाइल ऑरेंज टू द एसिड, इट विल टर्न इनटू रेड कलर. ओके, so this is how the synthetic indicators are used to find out the acidic and basic character of a solution. Okay, and the next type of indicators are the universal indicators. So okay, these are the most important indicators. The universal indicator जो आपके हैं ये बहुत important indicator हैं. तो इसका यूज हमारा मीन्स एक वास्ट वे में इसका यूज हम करते हैं आगे. ओके, सो लेट्स सी. बट बिफोर डूइंग दिस यूनिवर्सल इंडिकेटर, इसको आपको जानने से पहले लेट मी टेल यू अ कंसेप्ट दैट इज नोन एज द पीएच वैल्यू. ओके, तो पीएच वैल्यू क्या होती है, लेट मी
थ्रो सम लाइट अपॉन दिस टॉपिक। तो पीएच ये कहा जाता है जैसे आपसे बेसिकली ओके, आपसे कहा जाता है कि जो पीएच होता है, जैसे आपका एसिड का पीएच आपका होता है लेस देन 7 से कम होता है, एंड पीएच ऑफ सॉल्ट और वाटर, इसका जो पीएच होता है दैट इज़ इक्वल टू 7, और जो पीएच ऑफ बेस होता है ये आपका, इसकी पीएच वैल्यू आपकी 7 से ज़्यादा। मीन्स जो डेली लाइफ में हम देखते हैं ऐसे एग्जांपल्स हमारे बहुत सारे मिलते हैं ओके, जो पीएच वैल्यू ऑफ बेस की पीएच वैल्यू आपकी 7 से ज़्यादा होती है, सॉल्ट एंड वाटर की पीएच वैल्यू आपकी 7 के इक्वल होती है, और जो एसिड है इसकी पीएच वैल्यू आपकी लेस देन 7 होती है ओके। बट व्हाट इज़ दिस पीएच, ये पीएच क्या है? सपोज़ मैं आपसे कहूँ, जैसे मैंने आपको एक एसिड ये सॉल्यूशन दिया ओके, अब आपको पता करना है वेदर दिस सॉल्यूशन इज एसिड, ये सॉल्यूशन आपका एसिड है या बेस है। तो कैसे पता करोगे? यू हैव मैनी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर ओके, आप नेचुरल इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, आप सिंथेटिक इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं, आप ओल्फैक्टरी इंडिकेटर का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। सो यूजिंग ऑल दीज 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर यू कैन फाइंड आउट वेदर दिस सॉल्यूशन इज एसिडिक और दिस सॉल्यूशन इज एल्कलीन मीन बेसिक ओके। ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं आप ये नेचुरल इंडिकेटर या अदर इंडिकेटर का यूज करके, ठीक है, बिल्कुल पता कर सकते हैं। बट हाउ विल यू टेल ओके, जस्ट आई एम गिविंग यू 2 सॉल्यूशन, मैंने आपको 2 सॉल्यूशन दिए, इन बोथ आर कंटेनिंग एसिड, दोनों में एसिड है, बट नाउ यू हैव टू टेल विच वन इज द स्ट्रॉन्गर एसिड, इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है। बट इफ यू हैव टू टेल विच वन इज द स्ट्रॉन्गर एसिड, सो देयर इज अ प्रॉब्लम नाउ ओके, because the indicators do not tell whether a substance is more acidic or more basic okay। तो जो आपके जो इंडिकेटर अभी तक आपने पढ़े हैं ओके, तो आपको ये नहीं बताएंगे, नेचुरल इंडिकेटर आपको ये नहीं बताएगा कि ये ज़्यादा एसिडिक है, ये कम एसिडिक है, या ज़्यादा बेसिक है या कम बेसिक है। ऐसी सिंथेटिक और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर ये आपको बताएंगे नहीं कि ना, कि एसिड है तो कितना स्ट्रॉन्गर एसिड, इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो इसके लिए आपको हमें एक न्यू कंसेप्ट वी हैव टू डिराइव हियर, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द पीएच ओके। इफ़ यू वांट टू नो विच वन इज मोर एसिडिक, इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो इसके लिए हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज नोन एज द pH वैल्यू ओके। सो क्या है pH वैल्यू? दिस pH इज व्हाट, दिस pH इज जस्ट बेसिकली मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड और बेस, मीन्स एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को मेजर करता है। यानी आपको 2 सॉल्यूशन दे दिए, इसमें से कौन एसिड है, इन दोनों की स्ट्रेंथ को मेजर करेगा। यानी जो ज़्यादा, जिसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा एसिडिक होगा, जिसकी कम स्ट्रेंथ होगी वो कम एसिडिक होगा ओके। तो ये pH वैल्यू से हमें पता चलती है ओके। व्हाट इज दिस pH? दिस pH इज pH मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द pH वैल्यू, सो pH वैल्यू मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस ओके। एंड if I just elaborate this, so it will be pH considers the concentration of H positive ions okay। तो आपके कोई सॉल्यूशन में कितने H पॉजिटिव आयन हैं वो इंडिकेट करता है कि उसकी pH वैल्यू कितनी होगी। क्लियर है? pH considers the concentration of H positive ions ओके, समझ में आ गई बात? pH considers the concentration of H positive ion मीन्स किसी सॉल्यूशन में आपके कितने H पॉजिटिव आयन है वो डिसाइड करता है उसकी pH वैल्यू को ओके। एंड दिस pH मेजर्स द स्ट्रेंथ और बेस। तो अगर आपको pH व्हाट इज pH के बारे में पूछा जाए तो सिंपली यू कैन राइट डाउन दिस ओके। pH considers the concentration of H positive ions and second pH measures the strength of acidic or acids or base, इन दोनों की स्ट्रेंथ को मेजर करता है ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं जरा pH पे लाइट थ्रो करते हैं। अगर हमने आपसे बोला कि pH जो है ये H पॉजिटिव आयंस, कितने H पॉजिटिव आयंस होंगे उसको ये फोकस करेगा। ठीक है, एसिड में तो हमें H पॉजिटिव आयंस मिलते हैं, ठीक हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन बेस में H पॉजिटिव आयन कहाँ से आएंगे? यस, बेस में भी आपके H पॉजिटिव आयंस होते हैं बट द अमाउंट विल बी लेसर। जो बेस में H पॉजिटिव आयन होते हैं वो बहुत कम होते हैं, और एसिड में जो H पॉजिटिव आयन होते हैं बहुत ज़्यादा H पॉजिटिव आयन होते हैं, क्योंकि जिसमें जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन होंगे उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होता है ठीक है ना। तो एसिड में तो आपको H पॉजिटिव आयन बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन बेस में जो हमारे H पॉजिटिव आयन वो लेसर क्वांटिटी, क्योंकि बेस में क्या होते हैं हमारे OH नेगेटिव हाइड्रोनियम आयन होते हैं, है ना, नहीं हाइड्रोक्सी आयन ओके। तो बेस में आपके हाइड्रोक्सी आयन होते हैं, तो इसमें H पॉजिटिव आयन भी होते हैं लेकिन लेसर अमाउंट में होते हैं। H पॉजिटिव आयन आपके इसमें लेसर अमाउंट में होते हैं बेस में, क्लियर है ना। H पॉजिटिव आयन बेस में आपके लेसर अमाउंट में होते हैं ठीक है, और एसिड्स में H पॉजिटिव आयन ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। तो आपकी जो pH वैल्यू है ये यही चीज़ को कंसिडर करती है कि किस में कितने H पॉजिटिव आयन्स हैं। अब H पॉजिटिव आयन आपके दोनों में है, एसिड में भी है, बेस में भी है। So this pH is going to consider the concentration of H positive ions. Okay.
अच्छा, कैसे करता है, देखो हमें एक पीएच एक स्केल टाइप का होता है, दिस इज द स्केल, पीएच स्केल। इसमें क्या होता है, इसमें 0 से लेके 14 तक के आपकी वैल्यूज़ होती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, देन 1, देन 2, देन 3, ये अलग अलग स्ट्रिप दिए हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 14 तक की पीएच वैल्यू होती है। एक स्ट्रिप दिया, आपको स्केल दिया होता है पीएच स्केल, इस पीएच स्केल में अलग अलग पीएच वैल्यू होती है, लाइक यहाँ पर पीएच की वैल्यू 0, हेयर 1, हेयर 2, हेयर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो 14 तक की पीएच वैल्यू होती है इस स्केल में। ये स्केल आपको दिया जाता है, इस स्केल से आप पीएच वैल्यू को मेजर करते हैं। कैसे करेंगे, लेट्स सी। ओके, अगर आपकी पीएच वैल्यू 0 आई, अगर आपकी किसी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू इस साइड को आ गई, लेफ्ट साइड को, ओके, यानी 0 इस साइड को आई, तो इसका मतलब आपका सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है। अगर आपकी पीएच वैल्यू 14 या इस साइड को आई, तो इसका मतलब आपका सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है। लेकिन अगर बीच में आई तो 7 आ गया तो क्या होगा, अगर आपकी पीएच वैल्यू 7 आ गई, इस मीन्स योर सॉल्यूशन इज न्यूट्रल सॉल्यूशन। आपका सॉल्यूशन क्या है, न तो एसिडिक है न बेसिक है, आपका सॉल्यूशन न्यूट्रल है। ओके, सो दिस इज डिसाइडिंग। ओके, अगर आपकी किसी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 आ गई, इसका मतलब वो सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल है। अगर उसकी वैल्यू 0 या इधर तक आती है, इस बीच में, इसका मतलब वो सॉल्यूशन आपका एसिडिक है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक की वैल्यू सारी एसिडिक में आएंगी। 7 से ऊपर यानी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 यहाँ की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब सॉल्यूशन आपका क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है। क्लियर है ना, तो पीएच कंसेप्ट अभी क्लियर होगा अभी आपका। लेट्स सी नाउ। अच्छा, जो पीएच वैल्यू होती है कैसे कंसीडर इसको करते हैं, इसका मतलब ये होता है अगर किसी सॉल्यूशन में जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस होंगे उसकी पीएच वैल्यू उतनी ही कम मानी जाएगी। क्लियर है, मीन्स द सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर पॉजिटिव आयंस इज हैविंग द लेसर पीएच वैल्यू। ओके, किसी सॉल्यूशन की अगर H पॉजिटिव आयन की सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा है तो उसकी पीएच वैल्यू समझ लेना, उसकी पीएच वैल्यू उतनी ही कम होगी। क्लियर है, और किसी सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन अगर आपके बढ़ गए हैं, किसी सॉल्यूशन में आपके H पॉजिटिव आयन कम हो गए, बहुत कम हो गए, लाइक इन द केस ऑफ द बेस, तो इसका मतलब उसकी पीएच वैल्यू इज गोइंग टू इंक्रीज। तो पीएच वैल्यू समझ में आ गया आपका। तो पीएच वैल्यू इज नथिंग, इज बेसिकली द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। ये H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, यानी अगर आपके सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन ज़्यादा है, इसका मतलब आपकी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू कम है, तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। अगर आपके सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन की संख्या बहुत कम है, यानी कम है, तो उसकी पीएच वैल्यू इज गोइंग टू इंक्रीज, बढ़ जाएगी, और इसका मतलब आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। क्लियर है, और 7 जो पीएच वैल्यू होती है, यहाँ पर आपका क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। क्लियर है, यानी 7 से कम अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू आ रही है, इसका मतलब वो सॉल्यूशन, यानी 7 से कम कुछ भी ले लो आप, 0, 1, 2, 1.2, 2, 3, 4, 5, 6, 6.3, ये सारे आपके एसिडिक सॉल्यूशन होंगे, इसमें एसिड होगा। ठीक है, अगर 7 से ऊपर की वैल्यू आ रही है, यानी 8, 7.8, 9, 10 या 12, 13, 14 ये तक की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब आपका सॉल्यूशन क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है। यानी जितनी ज़्यादा पीएच वैल्यू उतना ज़्यादा सॉल्यूशन बेसिक, जितनी कम पीएच वैल्यू उतना सॉल्यूशन कम, उतना सॉल्यूशन ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। यानी किसी सॉल्यूशन की अगर पीएच वैल्यू 0 है, इसका मतलब वो सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा एसिडिक है। अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 1 है, ये उससे थोड़ा कम एसिडिक हो जाएगा। क्लियर है, यानी जितनी कम पीएच वैल्यू होगी उतना ही सॉल्यूशन ज़्यादा एसिडिक होगा, जितनी ज़्यादा पीएच वैल्यू होगी वो सॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बेसिक होगा। क्लियर है, H पॉजिटिव आयन पीएच वैल्यू कम से कम कब होगी, जब ज़्यादा से ज़्यादा H पॉजिटिव आयन होंगे सॉल्यूशन में, और ज़्यादा से ज़्यादा H पॉजिटिव आयन किस में होते हैं, मैंने आपको बताया, जो आपका स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, यानी जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उतने ही ज़्यादा उस एसिड में H पॉजिटिव आयन होते नहीं होते हैं, तो H पॉजिटिव आयन ज़्यादा होंगे तो पीएच वैल्यू बढ़ जाएगी। क्लियर है, यस, ऐसा ही है। और बेस में आपको पता है H पॉजिटिव आयनों की संख्या कम होती है, जितने कम H पॉजिटिव आयन होंगे उसकी पीएच वैल्यू उतनी ही बढ़ जाएगी, इसका मतलब उसका बेसिक करेक्टर उतना बढ़ जाएगा। क्लियर है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पीएच वैल्यूज। ओके, नाउ लेट मी गिव यू 2 सॉल्यूशन, मैं आपको अब 2 सॉल्यूशन देता हूँ। ओके, सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए इज हैविंग द पीएच वैल्यू 2 एंड सॉल्यूशन बी इज हैविंग द पीएच वैल्यू 4। एक की वैल्यू 2 है पीएच वैल्यू और दूसरे की पीएच वैल्यू 4 है। नाउ यू हैव टू टेल विच वन इज मोर एसिडिक, इन दोनों में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, यानी कौन ज़्यादा एसिडिक है, विच वन सॉल्यूशन इज मोर एसिडिक, एसिडिक सॉल्यूशन कौन है इसमें,
यानी दोनों एसिड हैं, क्योंकि आपको पता है 7 से कम वैल्यू है तो एसिड तो है, जैसे हमने यहाँ पर करा था ना, 7 से कम वैल्यू जितनी जिसकी भी होंगी, ओके, वैल्यूज लेस देन 7 ये एसिडिक में आएंगे, वैल्यूज मोर देन 7 बेसिक में आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों 2 और 4 दोनों की वैल्यू 7 से कम आ रही है, इसका मतलब दोनों एसिड हैं, लेकिन दोनों में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है? तो आप बता सकते हैं स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, जिसकी पीएच वैल्यू कम होगी। जिसकी पीएच वैल्यू कम होगी इसका मतलब इसमें एच पॉजिटिव आयन आपके बहुत ज़्यादा होंगे, जिसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब इसमें एच पॉजिटिव आयन इससे कम होंगे। क्लियर है? तो सॉल्यूशन ए ही आपका क्या होगा? ज़्यादा एसिडिक होगा। सो सॉल्यूशन ए इज गोइंग टू बी मोर एसिडिक एंड सॉल्यूशन बी इज गोइंग टू बी लेस एसिडिक। लेस एसिड का मतलब इसमें बेसिक करेक्टर आता रहेगा धीरे 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 धीरे। ओके, सो अगर आपसे पूछा जाए विच वन इज मोर एसिडिक, तो मोर एसिडिक में आपका क्या आएगा? pH 2 वाली वैल्यू आएगी। क्लियर है? लेट मी गिव यू सम अदर एग्जांपल। ओके, लाइक दिस, मोर बेसिक। इन दोनों में से बेसिक ज़्यादा कौन है? अब आपको बताना है ज़्यादा बेसिक कौन हो। ज़्यादा बेसिक कौन होगा? जिसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी। हमने भी यहाँ पर देखा है ना, पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा जिसकी हो जाती है, इसका मतलब बेसिक करेक्टर बहुत ज़्यादा आ जाता है उसमें। तो इस केस में आप देख सकते हैं, इस केस में आप देख सकते हैं विच इज हैविंग द मोर बेस, विच इज हैविंग द मोर पीएच वैल्यू, इट मीन द सॉल्यूशन डी। सॉल्यूशन डी इज हैविंग द मोर पीएच वैल्यू, दैट इज द 10। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी बेसिक एंड दिस इज गोइंग टू बी एसिडिक, क्योंकि लेस देन 7 है। क्लियर है? वेरी गुड। एसिडिक और बेसिक का मतलब यहाँ से आप समझ सकते हैं, जैसे लेफ्ट साइड में आपका जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे ए बी सी डी, तो ए से स्टार्ट करेंगे तो मीन्स एसिडिक, यानी लेफ्ट साइड में आपका एसिड करेक्टर आएगा एंड राइट साइड में आपका बेसिक करेक्टर आएगा। क्लियर है? वेरी गुड। ओके, सो पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन, अगर आपको पूछा जाए कि सॉल्यूशन आपको दिए हैं, ओके, चलो इससे पीछे थोड़ा मैं आपको, जो पहले मैंने एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पीछे कहीं पूछा था मैंने, द क्वेश्चन वॉज आई हैव गिवन यू 2 सॉल्यूशन एंड यू विल हैव टू टेल मी विच वन इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड। इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है? जैसे मैंने ये वाला आप क्वेश्चन दिया था, अब बता सकते हैं आप इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होगा? इसका मतलब जिसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? कम होगी। सपोज इसकी पीएच वैल्यू 2 है सपोज, एंड इसकी पीएच वैल्यू आपकी 5 आ गई, इसका मतलब स्ट्रॉन्गर एसिड क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा, क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? आपकी कम आ रही। क्लियर है ना? तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन आपको दिया है, उनकी पीएच वैल्यू हम अगर पता करें तो आपको यही से पता करना है। ज़्यादा से ज़्यादा एस पॉजिटिव आयन आपके आएंगे तो इसका मतलब क्या होगा? उसकी पीएच वैल्यू उतनी ही कम होगी। कम एस पॉजिटिव आएंगे तो उसकी पीएच वैल्यू उतनी ही बढ़ने वाली है। ओके, तो पीएच क्या होता है? व्हाट इज़ दिस पीएच? पीएच ये एक जर्मन वर्ड है, जिसका जर्मनी में जिसका दिस एब्रीविएटेड इसमें होता है, एब्रीविएशन होता है जिस पोटेंस। पोटेंस, सो पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंस। इसका मतलब होता है पावर और पोटेंशियल। पीएच एक जर्मन वर्ड है जिसको हम बोलते हैं पोटेंज, और इसका इंग्लिश में मतलब होता है पावर और पोटेंज। बट सिंपली आप इसको बोल सकते हैं पावर ऑफ H प्लस आयन्स। पीएच का मतलब क्या हुआ? पावर ऑफ H प्लस आयन, यानी कितने ज़्यादा H प्लस आयन है, पावर ऑफ H प्लस आयन। ओके, ये आपका पीएच का मतलब होता है। क्लियर है? वेरी गुड। तो पीएच कैलकुलेट कैसे करें हम? तो पीएच कैलकुलेट की एक वेरी डिफिकल्ट कैलकुलेशन होती है, ये इसमें लॉगरिथम अप्लाई होता है। ओके, सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कैलकुलेशन। ओके, ओनली द एक्सपर्ट्स कैन डू दिस कैलकुलेशन। सो पीएच के लिए हम एक लॉगरिथम, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव, तो जितने भी एच पॉजिटिव आयंस होंगे उनका लॉगरिथम, लॉग निकालने के बाद उसकी पीएच वैल्यू हमारी निकलती है। बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कैलकुलेशन। ओके, बट जनरली अब अगर आपको पीएच वैल्यू निकालनी है तो कैसे यूज करें? इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो हर किसी की बस की बात नहीं है करना। ओके, ओनली एक्सपर्ट्स कैन डू दिस। तो हम लोग कैसे निकालें? तो इसके लिए हम यूज करते हैं इंडिकेटर्स का। पीएच वैल्यू निकालने के लिए हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। अब आपको पता है इंडिकेटर क्या होते हैं? सब्सटेंसेज विच शो द एसिडिक और बेसिक बिहेवियर ऑफ अदर सब्सटेंसेज बाय चेंजिंग इन सम वे। ऐसे सब्सटेंस जो अपना किसी सब्सटेंस का एसिड और बेसिक बिहेवियर शो करते हैं कलर चेंज करने के बाद। कोई कलर चेंज करता है, कोई स्मेल चेंज करता है, तो उनको हम इंडिकेटर बोलते हैं। ठीक है, तो पीएच वैल्यू के लिए भी हम इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपके इंडिकेटर अभी तक हमने किए हैं, लाइक हमने फिनोप्थेलिन किया, ओके, लाइक हमने कोई और इंडिकेटर किया, ये एक फिक्स रेंज में ही काम करते हैं। लेकिन हमें पीएच कहाँ से कहाँ तक की चाहिए? 0 से 14 तक की हमें ऐसा इंडिकेटर चाहिए। वी नीड एन इंडिकेटर सच दैट विच कैन मेजर द पीएच वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 14। हमें एक ऐसा इंडिकेटर चाहिए जो 0 to 14 जो हमारा पूरा स्केल है पीएच, इन सब का पीएच वैल्यू हमें बता दे। ऐसा इंडिकेटर चाहिए, लेकिन ऐसा इंडिकेटर हमारे पास अभी तक नहीं है। ओके, अभी तक हमने जो नेचुरल इंडिकेटर पढ़े हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स पढ़े हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर पढ़े हैं,
इनकी इनकी जो रेंज होती है कम होती है, 14 तक की रेंज कोई नहीं बताता इसमें से, ठीक है। तो 14 तक की अगर रेंज आपको बतानी है तो विच वन इंडिकेटर इज देयर, एनी बेटर इंडिकेटर, कोई ऐसा बेटर इंडिकेटर आपका हो सकता है? आंसर इज यस। ओके, वैसा ऐसा इंडिकेटर हमें चाहिए जो टोटल पूरी की पूरी रेंज को कवर कर लेनी। जो हमने देखा ना अभी, जो पीएच स्केल है इसमें 0 से लेके 14 तक के खाने हैं, लाइक दिस 14 तक के खाने। तो ऐसा हमें इंडिकेटर चाहिए जो सारे 0 से लेके 14 तक की पीएच वैल्यू को हमें बता दे, यानी सब का करेक्टर बता दे, एसिड बेस सभी का बता दे। ओके, सो इज देयर एनी इंडिकेटर? सो द इंडिकेटर इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो हमारे पास ऐसा इंडिकेटर है और उसका नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर? लेट्स सी। तो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है आपका, दिस इज द मिक्सचर ऑफ 4 सिंथेटिक इंडिकेटर। 4 सिंथेटिक इंडिकेटर का मिक्सचर करके एक इंडिकेटर बनता है, लाइक मिथाइल रेड, थाइमोल ब्लू, फिनोप्थलीन एंड ब्रोमोथाइमोल ब्लू। इन 4 इंडिकेटर को मिक्स करके एक इंडिकेटर बना दिया जाता है, दैट इज नोन एज द यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसका यूज हमें करते हैं, कैसे करते हैं? दिस इज फाउंड इन 2 फॉर्म्स। एक तो इसको लिक्विड फॉर्म में भी हम यूज़ कर सकते हैं, एक हम इसको स्ट्रिप की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक ये येलो कलर के आपको स्ट्रिप दिया है, इसकी फॉर्म में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ। हम पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रिप की फॉर्म में इसको हम यूज़ कैसे करेंगे। देखो इसमें बहुत सारे कलर्स दिए हैं, जैसे हमने वहाँ पीएच स्केल करा था, पीएच स्केल में भी हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हमने देखे थे। यहाँ पर अलग कलर था, यहाँ पर अलग कलर था। 14 खाने इनमें बने तो 14 खानों में अलग अलग कलर थे। तो वो सारे कलर यहाँ पर आपको दिए गए हैं, पीएच वैल्यू इनके ऊपर लिखी गई है, ये सारे कलर के ऊपर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक ये येलो कलर की जो एक स्ट्रिप है इसको हम उखाड़ते हैं, निकालते हैं इसमें से। उसको हम क्या करते हैं, जो हमें सॉल्यूशन है, हमें ये सॉल्यूशन दिया है, हमें पता करना है कि सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन है, एसिडिक है, बेसिक है। तो हम वो येलो कलर की स्ट्रिप को इसमें हमने डिप किया। डिप करने के बाद हमने स्ट्रिप में देखा कि स्ट्रिप का कलर कैसा हो गया, लाइट ग्रीन कलर का हो गया। अब इस लाइट ग्रीन कलर को हम जो हमें इतने सारे कलर दिए इसमें मैच करेंगे। तो सब मैच करेंगे तो इसका आई थिंक किसके साथ मैच कर रहा है, इसके साथ मैच कर रहा है। और इसकी पीएच वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है आपको, 8 दी है। पीएच वैल्यू कितनी दिया है, 8 दिया है। तो इसका मतलब आप बता सकते हैं कि 7 से ज़्यादा पीएच वैल्यू, इसका मतलब इसमें बेसिक करेक्टर है ना, बेसिक करेक्टर है। इसका मतलब इस सॉल्यूशन में कौन सा करेक्टर है, क्योंकि 7 से ज़्यादा पीएच वैल्यू आ गई। 7 तो वाटर की होती है, 7 से ऊपर की जो पीएच वैल्यू सारे बेसिक होती हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने इसका कलर मैच किया, इसका कलर इस स्ट्रिप में कहाँ से किससे मैच कर रहा है, यू कैन सी इट, द कलर ऑफ दिस स्ट्रिप इज जस्ट मैचिंग। इस येलो कलर की स्ट्रिप थी, इस सॉल्यूशन में हमने डुबोया इसे, तो इसका कलर ऐसा हो गया। तो इसको मैच करेंगे तो इसका कलर मैच इसके साथ हो रहा है, और जिसकी पीएच वैल्यू क्या है, 8 है। अब आपको पता है पीएच वैल्यू अगर 7 से ज़्यादा होती है इसका मतलब बेस होता है। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन क्या है आपका, बेसिक सॉल्यूशन है। इसमें एसिड कम है, एसिडिक सॉल्यूशन नहीं है, बेसिक सॉल्यूशन। ओके, बट ज़्यादा बेसिक नहीं है, 8 कम ही होता है, ठीक है, 14 होता है बहुत ज़्यादा बेसिक। क्लियर है? सो दीज आर सम सॉल्यूशन हुज बेसिक एंड हुज पीएच वैल्यू हमें यहाँ पर पता है। जैसे वो जीरो पीएच वैल्यू आपकी बैटरी एसिड, बैटरी में जो आपका एसिड होता है, आपने देखा होगा बैटरी में जो एसिड होता है उसकी पीएच वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब स्ट्रॉन्गर एसिड, बैटरी का एसिड बहुत स्ट्रॉन्गर एसिड। लाइक स्टमक एसिड, स्टमक को जो आपका गैस्ट्रिक एसिड बनता है स्टमक में, तो उसकी पीएच वैल्यू 1 रेंज की होती है। इसका मतलब समझ सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है, इसलिए जलन होती है हमें पेट में जब एसिड बढ़ता है, ठीक है। विनेगर भी आपका एक एसिड में ही आता है, जिसकी जो पीएच वैल्यू रहती है, रेंज रहती है, वो थोड़ा वीकर सेक्शन में आ जाता है, 2। ओके, 2 या 2 से थोड़ा ज़्यादा, उतने रेंज की इसकी पीएच वैल्यू होती है। लाइक दिस ऑरेंज जूस की पीएच वैल्यू 3, ओके, 3 या उसी रेंज में आती है, 3.45 इस टाइप की। टमाटो में जो एसिड होता है, आई थिंक विच वन एसिड देयर, टमाटो में भी आपका एसिड होता है ना। तो उस एसिड की जो पीएच वैल्यू है वो 4 है ना, देखो इसलिए एसिड तो है वो, उसको बेस तो बोलोगे नहीं जो टोमेटो पाया जाता है, क्योंकि लेस देन 7 है, 4 है। ऐसी ब्लैक कॉफ़ी की पीएच वैल्यू दी है आपको। दिस इज़ द यूरिन, जो आपका यूरिन होता है इसमें ये भी एसिड होता है, इसमें एसिडिक करेक्टर होता है, 6 पीएच वैल्यू इसकी होती है, ठीक है, यस। और जो आप ये वाटर पीते हैं, वाटर, इसका ये न्यूट्रल होता है, यानी ना तो ये एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। इसलिए वाटर की आपकी चेकिंग होती है, रिवर वाटर की, कि वो इसमें कहीं एसिडिक करेक्टर तो नहीं आएगा, कहीं बेसिक करेक्टर, जो उसकी पीएच वैल्यू चेक की जाती है। इसका मतलब जो पीएच वैल्यू 7 होती है डिस्टिल्ड वाटर की होती है, यानी साफ सुथरा जो पानी होगा उसकी पीएच वैल्यू आपकी 7 हो जाएगी। क्लियर है? लाइक बेकिंग सोडा पीएच वैल्यू इज़ 9, सी वाटर पीएच वैल्यू इज़ 8। तो सी वाटर और बेकिंग सोडा इसमें थोड़ा बेसिक करेक्टर, तो सी वाटर इसीलिए हम नहीं पीते क्योंकि इसमें बेसिक करेक्टर आ जाता है। क्लियर है ना? इसकी एसिडिक वैल्यू, सॉरी, जो इसकी जो पीएच वैल्यू है वो 7 से ऊपर को, तो बेसिक करेक्टर आ गया, इसमें 7 होनी चाहिए। ऐसी बेकिंग सोडा 9। एंड इंडाइजेशन टैबलेट, जो हमारे एसिड बढ़ जाता है, एसिड, ये स्टमक में एसिड बढ़ जाता है, इसके लिए हम इंडाइजेशन टैबलेट लेते हैं,
उस एसिड को दूर करने के। उस टैबलेट में क्या होगा, बेस होगा, देखो 10 इसकी पीएच वैल्यू है, तो इसका मतलब बेसिक करेक्टर है उसमें, इसलिए एसिड के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रल कर देता है उसको। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम लोगों ने करी थी। नेक्स्ट इज द अमोनिया सॉल्यूशन। अमोनिया सॉल्यूशन की 11 है। नेक्स्ट इन द सोपी वाटर, साबुन का वाला पानी जो होता है इसका 12 पीएच वैल्यू होती है। ओके, ब्लीच 13 एंड दिस इज ड्रेन क्लीनर। जो आपका ड्रेन क्लीनर होता है सब बहुत ज़्यादा ही क्या होता है आपका बेसिक होता है, जो नाला साफ करते हैं, जो ड्रेनेज होता है उसको साफ करने के लिए होता है। सो दिस इज फॉर हैविंग 14 पीएच वैल्यू। तो ये तो आपकी कुछ पीएच वैल्यू थी, ठीक है। अगर किसी की पीएच वैल्यू इस रेंज में आ रही है, किस रेंज में आ रही है, 3.5 से लेके 4.5 तक की जो पीएच रेंज होती है किसी सॉल्यूशन की, 3.5 से 4.5 तक के बीच में, तो इसका मतलब माइल्डली एसिडिक, यानी बहुत कम एसिडिक नेचर वाला है ना। उसका एसिड बहुत कम करेक्टर है, एसिडिक करेक्टर यानी वीक एसिड में आप उसको मान सकते हो, माइल्डली एसिडिक है वो, ठीक है। ओके, और जैसे अगर आप कहते हैं 9.5 से 10.5 में अगर पीएच वैल्यू आती है, इसका मतलब वो बेसिक सॉल्यूशन है, ज़्यादा बेसिक, थोड़ा ज़्यादा बेसिक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। यस, और आप जो हमने पढ़ा, जैसे हम स्ट्रिप से तो ऐसे मेजर कर सकते हैं, स्ट्रिप से आप पीएच वैल्यू सभी की निकाल सकते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ करके। ये स्ट्रिप थी आपकी, इससे आप पीएच वैल्यू सभी की निकाल सकते हैं, अलग अलग जो जिसपी मैच करके उसके साथ आप पीएच वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसी जो आपका ये जो कलर है लिक्विड फॉर्म में यूनिवर्सल इंडिकेटर, इससे भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको क्या करेंगे आप, ये सॉल्यूशन लिया आपने, जैसे 4 सॉल्यूशन लिया, अलग अलग सॉल्यूशन, इसमें डाल दोगे इसको, तो इसका सॉल्यूशन जैसा कलर होगा इस कलर को यहाँ मैच कर लोगे आप, किसके साथ मैच कर रहा है, तो जिसके साथ मैच कर रहा है जहाँ पर मैं उसके ऊपर पीएच वैल्यू लिखे रहते हो उतनी उसकी पीएच वैल्यू हो जाएगी। वेरी इजी है ना। तो ऐसे आप पीएच वैल्यू हर एक सॉल्यूशन की आप लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है, वेरी गुड। सो यूनिवर्सल इंडिकेटर, what is universal indicator till now which we have read, that is universal indicator is made up of 4 different synthetic indicators, namely thymol blue, methyl red, bromothymol blue and phenolphthalein, ठीक है। ये आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, ओके। एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर कैन बी यूज्ड ओवर द कंप्लीट रेंज, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपको पता चल गया होगा डेफिनेशन का। तो पूरी रेंज यानी 0 से लेके 14 तक की पीएच स्केल होता है, तो पूरी रेंज का सब की पीएच वैल्यू निकाल लेता है, यानी जितने सॉल्यूशन होंगे आपके 14 से 0 से लेके 14, चाहे वो ज़्यादा से ज़्यादा एसिडिक हो, बहुत ज़्यादा बेसिक हो, तो सबको मेजर कर देगा यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन और एज स्ट्रिप्स ऑफ पेपर। दो फॉर्म में बनाया सकता है, इसको सॉल्यूशन की फॉर्म में भी हमने बनाया था जो अभी हमने दिखाया था, और स्ट्रिप्स में अलग अलग स्ट्रिप्स से बनाई थी, स्ट्रिप की फॉर्म में भी हम इसको बना सकते हैं यूनिवर्सल सॉल्यूशन को। टू फाइंड द पीएच अ चार्ट इज यूज्ड विद स्पेसिफिक कलर इन पीएच। तो अगर पीएच आपको निकालना है तो उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक कलर का जो चार्ट दिया रहेगा उसके साथ आपको पीएच वैल्यू, जैसे हमने अभी यहाँ पर करा था, स्पेसिफिक कलर का चार्ट आपको दिया रहेगा, ये सारा चार्ट ही है आपका, है ना। तो स्पेसिफिक कलर का जैसे ये चार्ट है, पूरा चार्ट ये स्पेसिफिक कलर का चार्ट दिया गया, यहीं से आप पीएच वैल्यू निकाल लेते हैं। क्लियर है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पीएच वैल्यू एंड दिस यूनिवर्सल इंडिकेटर। सो द रिमेनिंग पोर्शन वी विल डिस्कस लेटर, एंड till now whatever we have discussed, I think you must have means you must be knowing now, okay. So just keep making the notes also, okay. Thank you then, bye.